Shadan Ali, and I'm graduated from Dr. Bhimrao Ambedkar College, Delhi University, and I'm currently working in Pratham Test Prep as as the position of academic operations executive, and I have completed 2 years with this position. And sir, I want to switch my career as uh, I don't see sir, that much growth in this field I am working currently. Okay, very good, Shadan. So, Shadan, is it like someone suggested you to plan for this like data analyst, or it's completely your choice? Like you were just exploring and you took a decision. Okay, let's just give a try, right? So this is something like that, or like someone is already working in this field and like he or she has suggested you to, okay, you can plan for this, Shadan. बताइए. Sir, no one suggested me. I just Okay. explored some few things. What can I do for a better hike and career opportunities? And I found this, so I decided to join it. Okay, very good. Okay, and one more thing, like what exactly your roles and responsibilities? Like अभी आप क्या क्या देखते हैं experience में, working में? सर अभी सॉफ्टवेयर्स लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड पेंट और अलग MIS है कंपनी का, उस पर मैं काम करता हूँ. Okay, very good. So, Shadan, like, let me just first share my screen. So, do you have any idea related to what exactly a data analyst need to do? What is data science profile and why like all these trendy terms are like trending in market? What exactly the requirements? ये सारी चीज़ें क्या हैं? कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर बेसिकली मुझे इतना ही पता है, जैसे डेटा का रोल बढ़ता जा रहा है, चीज़ें हम्म. ऑफलाइन से ऑनलाइन हुई हैं. वेरी ऑफलाइन में गुड. इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो था ही डेटा, अब ऑनलाइन में भी है, और ऑनलाइन की डिमांड जितनी बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली डेटा एनालिस्ट की डिमांड भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. तो मुझे इसमें आगे स्कोप लगता है सर. Very good answer, Shadan, right? So, okay, so I think I have already shared my screen, right? And it's visible, right? Okay. So, Shadan, we Yes. know that ki right now we are living in an era of artificial intelligence, right? Where everyone is talking about artificial intelligence. But the thing is that most of the people only know like the AI is just as an chat GPT, right? If you just ask them like what do you understand by artificial intelligence, they will only give you the we can use chat gpt, google gemini, like elon musk grok model, alibaba coin model, deepseek model for that, right? But this is not just only the artificial intelligence. AI is just a field, right? And inside this field we need to understand what exactly the key terms, how we can like particularly work in all these fields, and who is the right person that can be able to work in this field, right? So AI is just a field, Shadan. If I just talk about AI is nothing, it is just a field. And that field is like it can work, we can particularly train our machine so that machine could able to think in a way that a humans do. yes या नो? ये एक तरीके का एक हमारा फील्ड है शादान, जिसमें मशीन एक इस Yes, तरीके sir. से ट्रेन करते हैं कि जैसे ह्यूमन सोचता है वैसे मशीन सोच सके. परफेक्ट. And the person that knows how to do this is called a data scientist, right? Data scientist generally uses a technology that is called machine learning and deep learning. Perfect. Machine learning and deep learning is the practical implementation of artificial intelligence. Shadan, if I am talking about like I am working in AI field, so it should be very specific one कि AI में आप क्या काम करते हो. अगर कोई पर्सन AI फील्ड में काम कर रहा है, दे कैन बी एन ML इंजीनियर एज वेल. वो मशीन लर्निंग यूज़ करके AI फील्ड में काम कर सकता है. अ पर्सन कैन बी अ डीप लर्निंग इंजीनियर, वो भी AI फील्ड में काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग टेक्निक. AI फील्ड में बंदा जनरेटिव AI के बेसिस पे भी काम कर सकता है. सो इट्स ऑल अबाउट ये सारे AI फील्ड के पार्ट है एंड ऑल दीज आर लाइक प्रैक्टिकल implementation of all these fields, right? So can I just say a person that knows all these things like AI क्या है, machine learning क्या है, deep learning क्या है, is a data scientist? Yes or no? यहाँ तक clear है, Shadant? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now we should understand, okay, if someone is planning for to work as a data scientist, and if you want to be work as a data scientist, or if you want to be a good data scientist, first of all you need to understand data very well, right? And the science of understanding data, this underlying asset of understanding data is a main work of a data analyst. You can't be a good data scientist if you don't understand the data like in a proper way. अगर आप डेटा अच्छे से नहीं जानते आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते. सो डेटा साइंटिस्ट बनने से पहले फिर हम कैसे स्टार्ट करें अपना करियर, राइट? यहाँ पर आप चेक कर पाते हैं शैतान, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
देख डेटा साइंटिस्ट से पहले यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन, ईडीए, यस या नो? Actually, all these tasks are related to data analyst. So I can just simply say, if someone wants a good data scientist, they need to at least start their career as a data analyst. Perfect. आप डेटा साइंटिस्ट तभी बन सकते हैं once you start your career as a data analyst. Now, what exactly the common terms between both data scientist and an analyst? बताइए दोनों में क्या common है? Data what? Right? Data analyst also has the common word data and scientist also, right? But can I just ask one thing? What kind of data that they generally works on? डेटा एनालिस्ट के पास भी डेटा आता है, डेटा साइंटिस्ट के पास भी डेटा आता है, बट दोनों किस टाइप के डेटा पे काम करते हैं बताओ शादान? सर जैसे जितना मुझे आइडिया है, डेटा एनालिस्ट प्रेजेंट डेटा पे काम करके उसके पॉसिबल आउटकम्स निकालता है, और डेटा साइंटिस्ट जो है अवेलेबल डेटा से पॉसिबल आउटकम्स और फ्यूचर में वेरी उसका क्या वेरी बेस्ट यूज हो सकता है वो उस पर very काम। good very good answer Shadan, right? So actually the data analyst generally works on past data and present data, right? The data could be like कि भाई टोटल सेल्स कितना हुआ, यस या नो? अभी तक की बात चल रही है, आज का यस सर। प्रेजेंट सेल्स कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ मेरा, परफेक्ट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, टोटल कस्टमर्स कितने हमारे पास यहाँ पर टोटल रिटेन कर पा रहे हैं. ऑल दीज आर अ की टर्म्स रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट. सो आई कैन जस्ट से डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को डिस्क्राइब करने का. क्या काम रहता है? डिस्क्राइब करने का. डेटा साइंटिस्ट ऑल्सो वर्क ऑन ऑल दिस डेटा, बट द मेन वर्क ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट इज टू फोरकास्ट दी सेल्स. फ्यूचर में क्या होने वाला है, फोरकास्टिंग से रिलेटेड काम करता है, यस या नो, राइट? एंड यस सर। फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट आपका फ्यूचर डेटा. कैन आई जस्ट से दिस? फोरकास्टिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर डेटा. सो इन जनरली आपका जो डेटा एनालिस्ट है वो पास्ट एंड प्रेजेंट पे काम करता है, एंड डेटा साइंटिस्ट आपका फ्यूचर डेटा पे काम करता है. इट वर्क्स ऑन prescription kind of analysis, like it generally gives prescribe you these are the things that you need to work on. So data scientist वर्क करता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर, डेटा एनालिस्ट वर्क आपका वर्क करता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर. दोनों का काम है, बट फ्यूचर में क्या वेदर फोरकास्टिंग होना है, क्या रेवेन्यू सेल्स फोरकास्टिंग होना है, वो सब डेटा साइंटिस्ट का काम है. शैदान यहाँ तक क्लियर है? परफेक्ट. यस राइट. सर। अभी आप एक्सेल टूल पे, एम एस वर्ड पे काम करते हैं, सो क्या इससे पहले इस फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या? मार्केट में डेटा एनालिस्ट इतना बूम पर क्यों है? इससे पहले क्या मतलब काम नहीं होता था? ऑफकोर्स काम होता था. पहले जो पर्सन था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेटा को एनालिसिस, रॉ डेटा से मीनिंगफुल एनालिसिस तक पहुंचाने का काम, वो करता था आपका कौन? एम आई एस एग्जीक्यूटिव, राइट? एम आई एस एग्जीक्यूटिव के पास शैदान रॉ डेटा आता था, एंड रॉ डेटा से हमारा मेन पर्पस क्या रहता था बताइए? इनसाइट्स जनरेट करना. यस सर। रॉ डेटा से हम कंक्लूजन्स तक पहुंच सकते थे, रॉ डेटा से हम आपका डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सकते थे. एंड आई कैन जस्ट सिंपली से एन एम आई एस एग्जीक्यूटिव इज अ पर्सन दैट कैन कलेक्ट द डेटा, that can organize the data, that can transform the data and convert the raw data into a meaningful analysis. Why? So that company can take decision based on that. Can I say this a statement, Shadan? Right? यस नहीं, सर। नाउ व्हाट अबाउट कि एम आई एस एग्जीक्यूटिव से फील्ड फिर डेटा एनालिस्ट की तरफ क्यों बूम हो गया, मार्केट में क्यों इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई? एक्चुअली द प्रॉब्लम विद द एम आई एस एग्जीक्यूटिव इज दैट इट कैन नॉट वर्क ऑन रियल टाइम एनालिसिस. अभी आपने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला था कि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, राइट? एंड दैट ऑनलाइन के बेसिस पर डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वेरी बिग अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास आ रहा है. सो ये दोनों प्रॉब्लम्स थे किसके? एम एस एग्जीक्यूटिव के. एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, यस या नो? कि यस सर। आप बस लिमिटेड डेटा पर काम कर सकते हैं. एम एस एग्जीक्यूटिव एक लिमिटेड डेटा पर काम कर सकता है. वट इन केस इफ़ आई जस्ट वॉन्ट कि भाई मेरे को रियल टाइम एनालिसिस चाहिए, इट्स नाउ 317, 317 पर ही कितना सेल्स हुआ, ये बात मुझे कैसे पता लगेगी बताओ? वो रियल टाइम एनालिसिस में एम एस एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा था. एंड दैट इज द रीजन वी नीड अ पर्सन दैट कैन गिव अ रियल टाइम एनालिसिस, that can convert the raw data, and the raw data could be like big data as well, and he or she is the right person can convert the raw big data into a meaningful analysis so that company can take decision based on that. Yes or no? So a data analyst is the right person to do all these things. That is the reason कि मार्केट में इस फील्ड की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. अब आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी.
Yes, sir. शैतान, परफेक्ट। नाउ एमआईएस एग्जीक्यूटिव और डेटा एनालिस्ट के पास एक कॉमन टूल है जो दोनों को आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेल। बिकॉज इफ वी आर गेटिंग वेरी लिमिटेड डेटा, सो आई कैन नॉट डिनाई कि भाई ये तो कम डेटा है, छोटा डेटा है, मैं इस पर एनालिसिस नहीं करूंगा। अगर हमारे पास लिमिटेड डेटा आ रहा है, एक्सेल में डेटा स्टोर होकर के आ रहा है, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेल इन अ वेरी प्रॉपर वे, सो दैट इफ आई वांट टू कन्वर्ट द डेटा इनटू अ मीनिंगफुल टर्म, सो वी नीड टू वर्क यूजिंग एक्सेल ओनली। और अगर मेरे पास लिमिटेड डेटा है, लिमिटेड, अच्छा आपने एक्सेल पे काम किया शैदान, आपने बताया था। Yes, sir, किया मैंने। एक्सेल का अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रोज का कितना लिमिट है, एक्सेल में कितना डेटा आ सकता है हमारा नंबर ऑफ रोज में? और सर 1 lakh and something। 1 लाख एंड समथिंग, आर श्योर? सी देखिए, मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया, इट इज़ लाइक 10 lakhs, 10,48,576, राइट? नो इशू, आप थोड़ा क्लोज हैं, हो जाता है कई बार, राइट? सो कैन आई जस्ट से कि मेरे पास एक्सेल में 10 लाख रोज के आसपास मेरे पास आ सकते हैं, यस या नो, राइट? अगर yes मेरे sir। पास इतना डेटा आ रहा है शैदान, तो या इससे कम डेटा आ रहा है तो मैं एक्सेल में एनालिसिस कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या, उसके आगे अभी सीखेंगे, ठीक है? एंड दैट इज़ द रीज़न ना कि डेटा एनालिस्ट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। ओके, लेट मी जस्ट शो यू, अगर मेरे पास लिमिटेड डेटा है तो उसे एक्सेल में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये एक ई कॉमर्स सेक्टर का डेटा है जो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सैदान, दिस इज़ द डेटा, राइट? इस डेटा में मेरे पास अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग सिटी हैं, स्टेट है, रीजन है, मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, सेल्स है, मेरे पास क्वांटिटी है, डिस्काउंट है। शैदान, आपने इस टाइप का डेटा एक्सेल में ऑल दो देखा होगा कभी ना कभी, राइट? ओके और yes sir। शैदान, द क्वेश्चन इज़ कि मेरे पास अलग अलग रीजन्स हैं, मेरे पे ईस्ट है, सेंट्रल है, साउथ है, वेस्ट है। मुझे ना एक ही बार में चेक करना है कि यार ये बताओ कि टोटल ईस्ट रीजन में कितना सेल्स हुआ, वेस्ट रीजन में कितना सेल्स हुआ, साउथ में कितना सेल्स हुआ, सेंट्रल में कितना सेल्स हुआ। कैसे गेट कर पाएंगे ये चीज़, आंसर बताइए। सर पाइवट टेबल से। वेरी गुड, राइट? सो द पर्पस ऑफ पिवट टेबल, वी कैन समराइज दी डेटा, यस या नो? उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए सीधा हिट करेंगे, इधर गए पिवट टेबल पर, ओके किया हमने, एंड सीधा हमने यहाँ पर भाई रीजन को पिक किया, और सीधा हमने यहाँ पर सेल्स को पिक किया, और देखिए मेरे पास यहाँ पर एनालिसिस आ गया, यस या नो? बट द थिंग इज दैट द क्वेश्चन वॉज कि सबसे ज़्यादा किसने किया था। उसके लिए मैं यहाँ होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। लुक दिस कलर्स, इस कलर्स के बेस पे जरा बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है आपको? इट्स लाइक वेस्ट रीजन, यस या नो शैदान, राइट? और yes sir, वेस्ट राइट। रीजन। सबसे कम कौन सा है? साउथ रीजन। साउथ रीजन। सी समटाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अंडरस्टैंडिंग डेटा इज नॉट द ओनली टास्क, वी नीड टू प्रेजेंट द डेटा एज वेल। अगर मैं आपको बॉर्डर मूवी, जो कि बहुत पॉपुलर मूवी है, यस या नो, इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी यस गई सर। है, अगर मैं इसकी किताब आपको पढ़ने को दे दूँ, आपको मज़ा आएगा? भाई स्टोरी वही है, बताओ, नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगी सर। बोरिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बट वही अगर मैं आपको मूवी दिखा दूँ या मैं आपको रील्स भी दिखा दूँ तो भी आप समझ लोगे, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, यस या नो? यस सर। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन्स रिलाइज ऑन विजुअल एनालिसिस, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा और द पिवट टेबल इनटू अ विजुअल फॉर्म। उसके लिए मैं यहाँ पर गया, पिवट चार्ट पर क्लिक किया, इधर मैंने पिक किया पाई, इधर मैंने ओके किया, एंड जस्ट लुक एट दिस, राइट? I can simply click on the designs and this will give you the complete analysis, right? Just let me know, Shaidan, which region is contributing the most. It's like West वेस्ट region, रीजन। and the overall contribution is 32%, right? Who is the least contributor? And the overall साउथ percentage, South. So 17। can I just say कि South is like just half of the West region, closely, not exactly, approximately. Yes or no? यस सर। Whatever the amount that west region contributing in terms of sales, just south only contributing the half of this. Can I say this statement ना? Okay, will that be like कि क्या ये बात मुझे इस डेटा को देख के पता थी? इस नहीं डेटा को सर। देख के ये बात तो नहीं पता थी, बट ये बात इस डेटा को देख के पता है, इस विजुअल को देख के पता है, यस या नो? नाउ दिस इज यस सर। कॉल्ड ना डिसीजन मेकिंग ना, यही तो होता है डेटा को एनालाइज करना, राइट? We need to figure out the pointers, we need to find the insights, we need to work on the conclusion. Why? Because we want to take decision, and that is the main reason कि हम raw data से analysis तक पहुंचते हैं।
उसके लिए हमें ये एक्सेल को सीखना रहता है। शैदान, क्लियर है? राइट Yes, sir. नाउ व्हाट अबाउट इफ वी आर गेटिंग वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा? अगर मेरे पास 10 lakhs का डेटा पर सेकेंड आ रहा है, देन इन दैट केस बताओ तब क्या करेंगे? भाई 10 लाख में तो एक्सेल वैसे ही भर गया, 10 लाख हर सेकंड आ रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। सोचो, कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना। एंड दैट इज द रीजन जहां पर एक हमारे पास पॉपुलर टर्म आता है विच इज कॉल्ड डेटाबेसेस। डेटाबेसेस कैन कंटेन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। अनलिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड। क्या फेसबुक पे अभी मैं कमेंट करने जाऊं तो क्या कोई लिमिट है क्या शैदान, कि आपने 10 कमेंट कर दिया, से ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते? नहीं बताओ। सर। क्या इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोटो पोस्ट करने जाऊं तो कोई लिमिट है कि आप इतना फ़ोटो पोस्ट नहीं कर सकते, आपने बहुत फ़ोटो पोस्ट कर दिया? ये सारा नो डेटा सर। कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, बताइए। तो कहना जस्ट से कि ये सारा डेटा मेरा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है बिकॉज अनलिमिटेड स्टोरेज है कि नहीं है? राइट। इस डेटाबेस के अंदर शैतान हमारे पास जो डेटा रखा रहता है वो टेबल्स फॉर्म में रखा रहता है। कैसे रखा रहता है? टेबल्स फॉर्म में। किसके अंदर रखा रहता है? डेटाबेसेस के अंदर। इस टेबल्स फॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड इस डेटा। टेबल से अगर मुझे कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के वर्ड को क्वेरी नाम से भी जाना जाता है। कैन आई से दिस? भाई क्वेश्चन करना इट मीन्स क्वेरी करना, राइट? और राइट आपसे सर। बात करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, क्यों नहीं यस सर। शैतान? अच्छा। यस या नो? यस सर। राइट। आप समझ गए होगे कि मैंने इतना घुमा के रिलेट क्यों करा है, राइट? हाँ। यस सर, राइट। SQL। राइट। इस टेबल से बात करने के लिए, ये टेबल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा है, इससे बात करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। एंड ये तीनों मिलके क्या बन जाता है मेरा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी SQL। लैंग्वेज, इट मीन्स एसक्यूएल। इट मीन्स मैं ये समझ गया कि अगर इस डेटाबेस में कोई टेबल रखा, उससे मुझे बात करनी है तो मुझे ये आना चाहिए, तभी तो मैं सीख पाऊंगा, तभी तो मैं बात कर पाऊंगा। बात करना मीन्स एनालिसिस निकाल पाना। यस या नो? यस सर। अब शैदान एक बात बताओ मुझे कि मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, तो क्या मैं मर्सिडीज़ में ही जाके सीखूं? खैर अगर वो पॉसिबल है तो ऑफकोर्स सीख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट मैंडेटरी तो नहीं है, कंपलसरी, ये ऑप्शनल है मेरे लिए। यस या नो? कोई भी गाड़ी से स्टार्ट कर यस सकते हैं। सेम एज इट इज़ इस एसक्यूएल को सीखने के लिए ना मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में। और एक टूल का नाम है माई एसक्यूएल, दूसरे टूल का नाम है शैदान एसक्यूएल सर्वर, तीसरे टूल का नाम है, ये एक तरीके से गाड़ियों के नेम है, IBM DB2। चौथे टूल का नाम है यहाँ पर आपका PostgreSQL। पांचवें टूल का नाम है आपका अमेजॉन। नाम सुना है आपने इन सब का कभी? दो चार का सर। नाम सुना ऊपर होगा। 3 के सुना सर, ऊपर वाले। तीन के सुने होंगे, SQL, राइट? SQL ठीक सर्वर, IBM। है ना? राइट। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब क्या अगर मुझे एक अच्छा ड्राइवर बनना है तो मुझे दुनिया की हर गाड़ी चलानी आनी चाहिए? क्या मैं पहले सबको सीखूं बैठ के, तब जा करके मैं टेस्ट दूं? बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। भाई एक आध सीख के आगे बढ़ सकते हैं ना। सेम एज इट इज़ इस एसक्यूएल को सीखने के लिए मुझे सारे टूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में 50+ टूल्स है, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है। सारे सीखने बैठेंगे तो हो गया, तो हमें एक आध के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट मी जस्ट शो यू, अगर हमारे पास बड़ा डेटा आता है तो उसे माइस्क्ल में कैसे एनालाइज करते हैं। हमारे सिस्टम में माइस्क्ल इंस्टॉल्ड है। इसे इंस्टॉल करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स टूल है, आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कंपनी भी फ्री में यूज़ करती है, राइट? यहाँ मैंने क्लिक किया। माइस्क्ल का नाम सुना है शैतान कभी? यस सर, सुना है। ओके, यूज़ होता है कंपनी में आपके? नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं होता ये। ओके, कंपनी बाय द वे आपका किस टाइप का वर्क करती है, राइट? सर एडटेक है। एंट्रेंस एग्जाम, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाती क्या बात कर रहे हो, कौन सी कंपनी है? है सर। प्रथम टेस्ट प्रेप, IIFM। ओके, प्रथम टेस्ट प्रेप IIFM, राइट? आपका। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अभी जितने भी आपके UPSCs के जितने भी आपके ये होते नहीं हैं प्रिपरेशंस। नहीं, नो सर, UPSC नहीं, लाइक NTA जो कराता है, DU, IP मैट, BU मैट। ओके, जैसे CUET का आपका हो गया, ड्यू का, यस सर, राइट? यस सर। ओके, वेरी गुड। क्लैट एंड और। ठीक है। ओके, तो ये इसके कहाँ कहाँ ऑफिसेज है वैसे? सर दिल्ली में, यहाँ कैलाश कॉलोनी तो हेड ऑफिस है जहाँ ओके, मैं वर्किंग हूँ। और राइट। कड़कड़ुमा, प्रीत विहार, नोएडा, पीतमपुरा, राजौरी गार्डन, विकासपुरी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो इनके पास तो डेटा तो बहुत आता होगा, तो आप तो डेटा बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इधर।
भाई और स्टूडेंट्स नहीं। बहुत सारा यहाँ अप्लाई करते होंगे, अलग अलग तरीके का डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं इधर, तो ये आपको यस एक्सेस सर। नहीं है? नहीं, उस पर मुझे एक्सेस नहीं है सर। ओके, उस पर भी आपको एक्सेस नहीं है, वेरी गुड। तो आपका वर्क क्या रहता है इस पे डिज़ाइन करना? मेरा सर क्वेश्चन पेपर्स, बुकलेट्स एंड इनके अलग अलग टाइप के एग्जाम्स, मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो हम्म। उन पे उनका लाइक सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना होता है, और हम्म। एक्सेल पे कुछ काम आता है, पीपीटीज बनती हैं सेशंस सेमिनार्स के लिए। तो उन सब हम्म। पे मैं काम करता हूँ। चलिए, इतना मैं आपको ज़रूर गारंटी दे रहा हूँ कि आप डीए जो सीखोगे ना, आपका वर्क बहुत इजी हो जाएगा। आप आगे उसे एक्सप्लोर करो, वो अलग बात है, बट क्योंकि पाइथन कोडिंग के थ्रू ये सब हम ऑटोमेटिकली करा सकते हैं। ठीक है, आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करना रहता होगा, यस सर। है ना? चलिए ठीक है, मुझे पता था, राइट। तो शैतान, ये हमारा ना माई एसक्यूएल टूल है, ठीक है? ये, जी, हाँ, कैसे सर आपको ये वो मैं हाँ, क्या चीज़? मैनुअल करता हूँ या ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट वाला, ये आपको कैसे अंदाजा? देखिए, आप अंदाज़ा ऐसे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आपके होते हैं सेट्स, ठीक है, वो ऑलरेडी आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, या जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके लिए बनाते होंगे। ठीक है, आपके पास एक पूरा डेटा आता होगा, उस डेटा में से आपको बोला जाता होगा कि भाई सीरीज़ के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो, रैंडम क्वेश्चंस पिक करो, यस है सर, ना, ऑप्शंस एग्जैक्टली के वही। अकॉर्डिंग, राइट। तो ये काम हम कोड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन के थ्रू, है ना, पॉसिबल है, राइट। लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने के लिए तो वो तो अभी लंबी सीढ़ी है, तो पहले थोड़ा सा इसे समझते हैं, ठीक है शैतान, राइट। ठीक है सर। ओके, सो ये हमारा ना डेटाबेस है, राइट। इस डेटाबेस में ये हमारा लेफ्ट साइड में ये देखो, एक डेटाबेस का नाम है, क्या नाम है इसका? जेप्टो। और हर ज़ेप्टो। डेटाबेस में अभी मैंने बताया क्या रखा रहता है, टेबल्स रखा रहता है। तो क्या नाम है मेरे टेबल का? ई ई कॉमर्स डेटा, कॉमर्स डेटा। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपने डेटाबेस को यूज़ किया, और यूज़ करने के लिए मैंने ये क्वेरी लिखा। जब भी आप किसी भी डेटाबेस को यूज़ करोगे तो परमिशन लेना रहता है, और उसके बाद किसी भी डेटाबेस में रखे किसी टेबल से आपको बात करनी है, तो ये लिखना रहता है, बहुत ईजी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपको टेबल का नाम रखना, जो भी टेबल है, क्या नाम है टेबल का? ई कॉमर्स डेटा, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसे मैंने रन किया, और देखिए क्या मेरे सामने आंसर आ गया, आया कि नहीं आया? यस या नो? यस सर। राइट, देखो, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, जे एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, यस या नो? शैतान, आपके पास ये डेटा आ सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट ने कहाँ कहाँ से अप्लाई किया है, किस किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, कितने फीस के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है, ऐसा डेटा हो सकता है। या किस किस स्टूडेंट्स का कितना कितना मॉक टेस्ट उन्होंने बाय किया है, कितना मॉक टेस्ट वो दे चुके हैं, कितना मॉक टेस्ट उनका पेंडिंग है, ये सारे डेटा आपके पास रह सकते हैं, राइट, है ना? सो हम इस डेटा पर ये क्वेरी लिख करके एनालिसिस कर सकते हैं। क्या एनालिसिस कर सकते हैं? जैसे शैदान, मेरे पास देखो अलग अलग सब कैटेगरी है, देख रहे हैं ना इधर? आप मान लेते हैं, यस सर। आप जोमेटो के लिए काम करते, या आप अमेजोन के लिए काम करते, अलग अलग प्रोडक्ट का सब कैटेगरी होता, और हर सब कैटेगरी में से आपने कुछ ना कुछ सेल्स किया, यस या नो? शैदान, मैं आपसे ये यस। पूछना चाह रहा हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किसने किया, या मुझे टॉप 5 बताओ, टॉप 5 कौन है? एक वैलिड क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि उन टॉप 5 के बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, बताओ ये वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है। यस तो सर, उसके लिए वैलिड। हम क्या करें? उसके लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि भाई, मेरे को सब कैटेगरी को मंगाना है, ये मेरा कॉलम होने वाला है, वेरी गुड। और दूसरा मुझे क्या करना है शैतान? जितना भी मेरा सेल्स प्राइस था, उन सबको मुझे क्या कर देना है? सम कर देना है। आप कहोगे सर ये आपने बैकटिक क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ स्पेस है मेरा, इसीलिए। ये हम सीखते हैं आगे, ठीक है। और ये सारा डेटा कहाँ से मंगाना है शैतान? ई कॉमर्स ई कॉमर्स डेटा से। डेटा। अब आपको ये बात पता है कि यार सारे सब कैटेगरी बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो गर्ल्स फैशन यहाँ भी है, गर्ल्स फैशन यहाँ भी है। आपको नहीं लग रहा इन सबको ग्रुप करना चाहिए, पहले एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, राइट? तो इन सबको हम ग्रुप बाय कर लेंगे, और जैसे ही ये क्वेरी में रन करूंगा, देखो शैतान, हमारा आंसर आ चुका है कि गर्ल्स फैशन ने टोटल कितना सेल्स किया, मेडिकल सप्लाईज ने कितना सेल्स किया, मोबाइल फ़ोन्स ने कितना सेल्स किया, बॉयज़ फैशन ने कितना सेल्स किया। आंसर आया कि नहीं आया? शैतान, ये जो कॉलम है ना, इसको मैं एक नया नाम भी दे सकता हूँ, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक नया नाम, टोटल सेल्स। यहाँ देखो ये लिखा आ रहा है, और अभी क्या लिखा आएगा? टोटल सेल्स लिखा आएगा। आंसर आया मेरे सामने इधर, टोटल सेल्स, यस या नो? ओ यस शैतान, सर। परफेक्ट है ना? शैतान, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था टॉप 5 बताना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, यार इनको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। आप
एक काम करो, जिनका सबसे ज़्यादा सेल्स है उनको सबसे पहले दिखाओ। तो मैंने क्या बोला, किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करो? टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग। और डिसेंडिंग। कैसा ऑर्डर करो? डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड। इसको मैंने रन किया। शैदान सबसे ज़्यादा किसका है बताओ? विटामिन्स का। विटामिन्स, डाइटरी सेकंड सप्लीमेंट, मेडिकल मेडिकल थर्ड, सप्लाइज, मेंस मेंस फैशन फैशन, फोर्थ, गर्ल्स फैशन फिफ्थ, किचन एंड किचन डाइनिंग। एंड डाइनिंग। बट क्वेश्चन था कि सर फिफ्थ 5 ही दिखाओ, ये तो आप तो ज़्यादा दिखा रहे हो। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर बोल सकता हूँ लिमिट 5। अगर मुझे हल्की भी इंग्लिश आती है तो मैं सीक्वल सीख सकता हूँ। और देखिए क्या मेरे पास वो 5 आए कि नहीं है? यस या नो? यस सर। राइट। डेटा कितना बड़ा था आपने देखा था ना? बट उस बहुत। बड़े से डेटा में से ये जो हमने कहानी लिखी है, जो इंग्लिश लिखा है इधर, यही इंग्लिश सीखना है। और यहाँ इंग्लिश की क्लास नहीं, यहाँ पर हमें ये सीक्वल क्वेरी कहते हैं इसे। ठीक है, वैसे सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी होती है इधर, सो दैट आप अपने आप को थोड़ा इन्हेंस कर सको, पर्सनालिटी डेवलप कर सको, राइट। तो वो भी आपको मिलेगा एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट। तो ये जो इतना मैंने कहानी लिखा है ना शैदान, इसी को सीक्वल क्वेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीक्वल क्वेरी। सीक्वल कोई। और इस सीक्वल क्वेरी के थ्रू मैं अपने डिसीजन पे पहुंच सकता हूँ। ये बात मुझे थोड़ी देर पहले नहीं पता थी कि विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा बेचे गए हैं, बट अब ये बात मुझे पता है। बस इसके बेस पे डिसीजन ले लेंगे, यही तो चाहिए ना। ठीक है। लेकिन शैतान यहाँ पर इशू ये है, अच्छा यहाँ तक कुछ पूछना तो बताओ। हमने एक्सेल सीखा, हमने सीक्वल सीखा, अभी दोनों सीखा हमने डेटा एनालिस्ट के बेसिस पर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। शैतान क्या यहाँ पर मैं विजुअल्स बना सकता हूँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यार आंसर तो यहाँ भी आ रहा था, बट यहाँ चार्ट्स बन पा रहे थे। ये काम यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये काम यहाँ पॉसिबल नहीं है शैतान, इसीलिए डेटा एनालिस्ट को तीसरी चीज़ सीखनी रहती है। दो चीज़ तो सीख लिया हमने, तीसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बी आई टूल्स। क्या कहते हैं? बी आई टूल्स। और इस बी आई टूल्स का क्या नाम है आपका? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। क्या नाम है इनका? बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस टूल्स। और इस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स ये क्या करता है? ये किसी भी रॉ डेटा को डैशबोर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प आपको कैपेबल है, किसी भी रॉ डेटा को डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड का मतलब है यहाँ पर कंप्लीट पिक्चर, एंटायर मूवी। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बॉर्डर मूवी की बात करी थी। वो बॉर्डर मूवी अगर मैं आपको 10-20 रील दिखा दूँ तो क्या वो मूवी कंप्लीट हो जाएगी क्या? नहीं सर। नहीं। अच्छा चलो, मैं उस बॉर्डर मूवी के सारे 1-1 मिनट के रील्स आपको दिखा रहा हूँ, बट वो रील्स आगे पीछे हैं, तो क्या वो मूवी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं सर, नो सर। नहीं। इशू क्या है? सीक्वेंस में नहीं है। सो सेम एज इट इज़, ये जो हम यहाँ ये जो चार्ट्स बना रहे हैं, इन चार्ट्स को हमें अच्छे से अरेंज करना रहता है। एंड उसी को डैशबोर्ड बोलते हैं, एक पिक्चर बोलते हैं, एंटायर पिक्चर बोलते हैं। और वो पिक्चर बनाने का काम यहाँ पर जिस बी आई टूल्स के थ्रू हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पावर बी आई। सेकेंड जो हमारा बी आई टूल है उसका नाम है यहाँ पर आपका टैबलू। थर्ड जो हमारा यहाँ पर बी आई टूल है उसका नाम है यहाँ पर अमेजोन का क्विक साइट। यस या नो? फोर्थ जो हमारा बी आई टूल है उसका नाम है आई बी एम का कॉग्नोस। फिफ्थ जो हमारा बी आई टूल है उसका नाम है जोहो का एनालिटिक्स। सिक्स हमारे पास बी आई टूल है, यहाँ पर हम गूगल का लुकर स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। क्या इतना नाम सुना था आपने? हाँ, नो सर, इतने ज़्यादा नहीं सुने थे मैंने। ऐसे 25 प्लस और हैं। हाँ। और ये बात मैं ऐसे में हवा में नहीं कह रहा हूँ, चलो आपको प्रूफ देते हैं इस बात का। भाई गूगल पे तो सारा रिजल्ट आ जाएगा ना। ठीक है शैदान, यस या नो? हाँ यस सर। राइट। आपके सामने ये रिजल्ट है, 1 2 3 3 3 6 3 9, 9 और 15 प्लस और है। देखिए ये लिस्ट आया कि नहीं आया? +45 प्लस और। इस पर क्लिक करूंगा तो देखो एंटायर यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगा। अभी हमने जो बात करी, क्या उसमें मैंने जोहो लिखा था? बिल्कुल लिखा था। यस सर। क्या मैंने टैबलू लिखा था? बिल्कुल लिखा था। यस सर। क्या मैंने लुकर स्टूडियो लिखा था? बिल्कुल लिखा था। यस सर। आई बी एम कॉग्नोस लिखा था, राइट। यस सर, देखा यहाँ था। पावर बी आई लिखा था। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सारे थोड़ा ना लिखने बैठ जाऊंगा। ठीक है, राइट। यस सर। लेकिन क्या ये फिर वही बात हो गई, क्या हमें सारे आने चाहिए? नहीं। हमें वो आने चाहिए जो मार्केट में पॉपुलर है। और मार्केट में पॉपुलर है ये दोनों भाई साहब। एक का नाम है पावर बी आई, एक का नाम है टैबलू। बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल पे रिजल्ट दिख रहा है, पावर बी आई और टैबलू। ठीक है। देन धीरे धीरे बाकी सबका डिमांड है। इन दोनों के बेसिस पर आप मार्केट में आपकी जॉब 100% तय है। आपको यहाँ इन बाकी कंपनी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ये आपका रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करते हैं। ठीक है शायद आप?
शादाब कह रहा हूँ, सॉरी नाम ही भूल गया यार। शादाब, यस हाँ, सर। शादाब। अली सर ज्यादा सिंपल रहता है मेरा अली, नाम। राइट राइट, ठीक है। नहीं, एक कैंडिडेट है उसका नाम एक्चुअली शादाब है, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा सिमिलर नेम है ना, इसीलिए, राइट। यस सर। ठीक है। सो हमने ये जाना कि यार पावर बीआई के थ्रू हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो कैसा दिखता है पावर बीआई? तो पावर बीआई कुछ ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पर ये डैशबोर्ड हमने बनाया हुआ है, राइट। और ये डैशबोर्ड किसका है? आपका हेल्थ केयर कंपनी का डैशबोर्ड है, मैक्स हेल्थ केयर कंपनी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। शैदान, अगर मैं यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करूँ तो फीमेल के टोटल कितने पेशेंट्स आए थे मेरे पास, बताओ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ डेटा आ गया मेरे पे, 4487, है ना। उनका यस एवरेज सर। वेट टाइम हॉस्पिटल में, एवरेज वेट टाइम कितना जा रहा था? 35 मिनट। उनकी एवरेज एज कितनी है आपकी? 40 के आसपास। यही अगर मैं मेल पे क्लिक करूँ तो ये मेरा डैशबोर्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरा? देखो, देखो यस सर। सारे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो, सब विजुअल्स को ध्यान से देखो, चेंज हो रहे हैं ना। इनको यस केपीआईज सर। बोला जाता है, और ये होता है डैशबोर्ड कंपनी। केपीआई हाँ, सर। केपीआईज, केपीआईएस, एस मतलब प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो इसलिए एस, केपीआईज। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट। इससे आप कंपनी का डिसीजन जल्दी ले सकते हैं कि भाई कंपनी कैसा चल रहा है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, परफेक्ट, ठीक है। यस सर। सो एक डैशबोर्ड बनाने में हमें यही सारी चीज़ें का इंक्लूड करना रहता है, राइट। और एक डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पावर बीआई को यूज़ कर सकते हैं, और अपने बेसिक डेटा को जो कि एक्सेल में या सीक्वल में कहीं रखा होगा, उस डेटा को इतने अच्छे डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा, जो जो बंदे सीखते हैं ऐसा डैशबोर्ड सब दिखाते रहते हैं कि भाई आज मैंने ये बनाया, आज ये बनाया मैंने, है ना। देखा होगा आपने, ऑनलाइन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया होगा तो शैतान, यस या नो, राइट। सो यस सर। एज अ पावर बीआई डेवलपर, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप पावर बीआई डेवलपर भी बन सकते हैं, राइट। सो जब ये तीन चीज़ें शैतान आपको आ जाती है तो आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं। पहला क्या था? एक्सेल। दूसरा क्या था? एसक्यूएल। तीसरा क्या था एसक्यूएल। आपका? पावर पावर बीआई, बीआई। या कोई भी बीआई टूल, टैबलू आप यूज़ कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि हाँ अब मुझे 60% डेटा एनालिस्ट मैं बन चुका हूँ। बट आप 60% ही बने हैं, 40% अभी भी पेंडिंग है। कहाँ है वो 40%? क्योंकि हमने जाना डेटा एनालिस्ट ही आगे जा कर के क्या बनता है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्लास में हमने यस देखा सर। था, डेटा डेटा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। सो वो 40% वो डेटा एनालिस्ट के लिए है जो थोड़ा कोडिंग के थ्रू डेटा को एनालाइज करना चाहता है, कोड का यूज़ करके। अब कोड का यूज़ करके मैं सी लैंग्वेज यूज़ कर सकता था, सी प्लस प्लस यूज़ कर सकता था, जावा यूज़ कर सकता था, पीएचपी यूज़ कर सकता था, एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या हमें ये सब सीखना रहता है? नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है शैतान। हमारा पर्पस है यहाँ पर डेटा को एनालाइज करना, और उसके लिए सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका क्या नाम है? पाइथन। पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन में बहुत बड़े बड़े कोड नहीं करने होते। जैसे अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है तो या तो मैं खुद ही लेबर मजदूर बन जाऊं, या तो मैं ठेकेदार को हायर कर लूं, पैसा दे दूं और वो मुझे बना के दे देगा। क्या इजी काम है बताओ? एक ठेकेदार से। कॉन्ट्रैक्टर से करवा सकते हैं ना, यस राइट। सर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर यही है हमारे पास इधर, पाइथन। इसमें हमें स्टार्टिंग से कोड नहीं लिखना रहता, इसमें इनबिल्ट कोड्स होते हैं। उन कोड्स को बोला जाता है शैदान मॉड्यूल्स। क्या बोला जाता है? मॉड्यूल्स, या मॉड्यूल्स। लाइब्रेरीज बोला जाता है। अगर मुझे पाइथन के थ्रू डेटा एनालिसिस करना है तो मैं पांडास मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकता हूँ, मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ, सीबोन मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ, नम्पी मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ। और इन सब के थ्रू मैं कोडिंग के हेल्प से मैं अपने डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कोड के हेल्प से मैं अपने डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। क्या मैं शो एनालाइज। करूँ कि कोड के हेल्प से कैसे कर सकते हैं, बताइए। यस सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा, बिल्कुल राइट। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक जुपिटर नोटबुक में यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, और उस पर हम पाइथन का कोड लिखते हैं कि कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी हमने एक्सेल सीखा, एसक्यूएल सीखा, पावर बीआई भी देखा, और यहाँ पर मैं आ गया पाइथन पे, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। शदान, अगर मुझे 2025 का कैलेंडर चाहिए तो मुझे बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना पाइथन में, मैं सीधा इंपोर्ट करा लूँगा, क्योंकि पाइथन में इंपोर्ट करा के सारा काम हो जाता है। मैं बोलूँगा कैलेंडर भाई साहब, कैलेंडर मंगाओ, कौन सा? 2025 का, और इसे क्या कर दो, लेट जस्ट प्रिंट दिस कैलेंडर। क्या ये कैलेंडर आया कि नहीं आया मेरा?
आया ना 2025, राइट? Yes, sir. कितने लाइन का कोड है शैतान? 2 लाइन का। चैट जीपीटी आप यूज़ करते हैं? यस या नो? थोड़ा बहुत तो यूज़ Oh, किया ही yeah. होगा, Yes, ऑफ sir. कोर्स। थोड़ा थोड़ा. मैं गया चैट जीपीटी पर और यहाँ मैंने बोला हाउ टू प्रिंट कैलेंडर इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और देखते हैं कौन जीतता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा कोड आया? पाइथन का। Py- कितने लाइन Python. का? 2 लाइन का। 2 लाइन का. दूसरा कौन सा कोड आया? जावा Java. का, आपके सामने है कोड। तीसरा कौन सा है? सी प्लस C++. प्लस, जो कि चल रहा है अभी, ठीक है। चौथा कौन सा कोड है आपका? जावा JavaScript. स्क्रिप्ट का, चल रहा है अभी आपके सामने कोड। पांचवा आपका पीएचपी। यही सब तो बात हो रही थी कि इन्हीं सब को तो नेगलेक्ट करते हैं हम। भाई हमारा पर्पस कोई कोडर बनना थोड़ी ना है, हमारा पर्पस कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना बनाना है, हमारा पर्पस डेटा को एनालाइज करना है। और इसीलिए हम किसको पिक कर रहे हैं? पाइथन को पिक कर रहे हैं। समझे शैतान? आपके सामने आंसर है, देखिए, यस या नो, Oh, राइट? yes, sir. परफेक्ट। सो वी नो दैट कि भाई पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो चलो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं पाइथन में डेटा। शैतान मुझे 5 बैंक्स के नाम बताओ, इंडिया के बैंक्स। लेट मी फर्स्ट राइट एक्सिस, सेकंड एचडीएफसी, थर्ड बताओ भाई, एसबीआई। सर तुम्हें लिखना पड़ेगा आई से मेरा माइक अनम्यूट था सर. माइक अनम्यूट था या म्यूट था? सॉरी, म्यूट था. चलिए कोई बात नहीं। ICICI हो गया, ICICI, कैनरा बैंक. चलिए पीएनबी फाइनल, इतना ठीक रखे। हाँ सर, चलिए 5 हो ठीक है, गए. 5 हो गए। इन सब ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया होगा एनुअल, राइट? 120 करोड़, 180 करोड़, ठीक है, 200 CR। आईसीआईसीआई मैंने मान लिया 250। ये रैंडम डेटा, इग्नोर करना कि सर ऐसे कैसे आपने इसको ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, रैंडम है, ठीक है। इनको ठीक अगर है मुझे सर. टेबल में कन्वर्ट करना है तो पाइथन जाना जाता है अपने दोस्तों के लिए, अपने मॉड्यूल्स के लिए। टेबल बनाने के लिए जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है पांडास मॉड्यूल। क्या नाम है शैतान? पांडास मॉड्यूल। पंडास. पांडास के अंदर टेबल को यहाँ डेटा फ्रेम बोला जाता है। डेटा को फ्रेम फॉर्म में दिखाओ तो टेबल ही तो हुआ ना, तो वो डेटा फ्रेम हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले कॉलम का नाम दिया, वो मैंने रखा बैंक्स नेम, और बोला पहले कॉलम के अंदर क्या डेटा आएगा? पहले कॉलम के अंदर थैंक्स. ये डेटा आएगा। दूसरे कॉलम का नाम मैंने रखा एनुअल प्रॉफिट, और दूसरे कॉलम में कहाँ से डेटा आएगा? प्रॉफिट से प्रॉफिट. डेटा आएगा। इसको रन किया मैंने तो देखिए आपके सामने आंसर आया कि नहीं आया? टेबल बन के आया यहाँ पर बढ़िया सा। यस सर. इसको मैंने किसके अंदर स्टोर कर लिया शैतान? टेबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब पाइथन जाना जाता है किसके लिए? मॉड्यूल्स के लिए। भाई चार्ट्स बनाना है तो चार्ट्स बनाने के लिए दूसरे दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, और उस दोस्त का क्या नाम है मॉड्यूल्स का? पाइप्लॉट। मैटप्लॉटलिब मंगा लिया मैंने यहाँ पर, है ना। और यहाँ मैंने मैटप्लॉटलिब के अंदर मैंने बोला कौन सा ग्राफ बनाओ शैतान? बार बार ग्राफ. ग्राफ। बोला एक तरफ बैंक्स को दिखाओ और दूसरी तरफ ये दिखाओ उन्होंने कितना प्रॉफिट किया, और दोनों ग्राफ को क्या कर दो यहाँ पर शो करा दो। क्या ये मेरे सामने ग्राफ बन के आया? यस सर. किसके थ्रू आया? पावर बीआई के थ्रू, एक्सेल के थ्रू, या पाइथन के थ्रू, कोड के थ्रू? पाइथन से कोडिंग. कोडिंग से आया। शैतान आपको नहीं लग रहा है कि यार यहाँ पर थोड़ा बहुत जो थर्ड पर्सन है उसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो यहाँ टाइटल भी देना चाहिए हमें, हैं? यस सर. तो यहाँ मैंने लिखा एनुअल प्रॉफिट एनालिसिस, तो देखो यहाँ टाइटल लिखा आ गया, बढ़िया है ना? यस सर, चलो, जैसे हमने हाँ, इसमें सीरियल हमारा 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4, इसको हम 1 से भी कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कर सकते हैं। चलो पहले मैं कलर दे देता हूँ, फिर इसे 1 से करा देते हैं, राइट? यहाँ मैंने यस. शैतान बोल दिया कि भाई कलर पास करा दो। इधर मैंने बोल दिया 5 बैंक है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के 5 लिए थे। ग्रीन बोल सकता हूँ, येलो बोल सकता हूँ। कल को आप कहोगे सर 20 बैंक हो गए, तो क्या 20 के नाम लिखने पड़ेंगे क्या सर? नहीं, नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। अभी 5 मैंने यहाँ नाम लिखा तो देखो पाँचों कलर आ गए यहाँ पर। शैतानियत से नो। यहाँ पर यस हमने सर. बचपन में थोड़ा सा ये पढ़ा हुआ था, विच इज़ कॉल्ड हैचिंग। हैचिंग का मतलब है कि इनको लाइंस यहाँ पर शो कर दो, ऐसा हम, ये याद होगा आपको थोड़ा बहुत, है ना? यस सर. ठीक है। शैतान इनका मैं डेटा भी शो कर सकता हूँ। इस पूरे को मैंने एक कोड के अंदर स्टोर कर लिया, और कोड का क्या नाम है यहाँ पर मेरा? डेटा, राइट? और मैंने बोला कि भाई हर एक बार के बार पर जाओ और उसका लेबल दिखा दो, और लेबल कहाँ से दिख जाएगा मुझे? डेटा से दिख जाएगा। ये सब हम सीखते हैं। ये डेटा आया कि नहीं आया बताइए? यस ठीक है। सर. अब चलिए, आपका क्वेरी क्या था कि सर हम वन से शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल शुरू कर सकते। कितना डेटा है शैतान इसमें? 1 2 3 4 5, है ना? इसके लिए हम यहाँ पर ये छोटा सा कोड लिखते हैं, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। यहाँ मैंने बोला रेंज है, और रेंज की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दो? 1 से स्टार्ट कर दो, है ना?
और कहाँ तक जाओ, 6 तक जाओ। और यहाँ मैंने टेबल को रन किया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यही चाहिए था आपको। yes sir. राइट। uh, अच्छा शैदान, अगर थोड़ा सा कोविड का सिचुएशन आ जाता है और प्रॉफिट सबके गड़बड़ा जाते हैं, राइट, तो कम हो जाता है, यस या नो? yes sir. तो जैसे ही मैं यहाँ पर कोड रन करूँगा तो ये टेबल बदला, टेबल बदला तो क्या ये ग्राफ बदले? हो गए सर चेंज। बिल्कुल बदल गए। और ये सारा एनालिसिस और ग्राफ्स हमने किसके थ्रू बनाया? पाइथन के थ्रू। पाइथन के थ्रू बनाया। ये जाना ही इसीलिए जाता है पाइथन, ठीक है, कि आप पाइथन के थ्रू आप यहाँ पर बढ़िया सा एनालिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप अपने मन के अकॉर्डिंग जिस टाइप का विजुअल आपका बनाने का मन कर रहा है आप वैसा शो कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? यहाँ पर देखिए, ये कौन सा है हमारा, बताओ ये कौन? पाई चार्ट ये सर। पाई चार्ट है हमारा। परसेंटेज आए कि नहीं आए यहाँ पर सारे के सारे? यस सर। ठीक है। और इसी पाई चार्ट को मेरा मन कर रहा है कि भाई थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ आपको मैं, ये सब आगे सीखेंगे हम, ठीक है, राइट। और यहाँ पर इसी पाई चार्ट को मैंने थोड़ा सा जो है आपका कलर के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर, और इसका रेडियस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया। तो क्या यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, राइट। और यहाँ ये मैंने रन किया तो ये कैसा दिख रहा है? डोनट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। अच्छा। यस पाई सर। चार्ट को ऐसे कोड के थ्रू हम यहाँ पर सारा कंट्रोल ले सकते हैं, देखो कितना बढ़िया है, राइट। ये मैं वैल्यूज़ में आगे भेज सकता हूँ। ये सब हमें सीखना रहता है और ये सब बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, राइट। ये सब इजी है, देखिए आ गया कि नहीं आ गया बाहर। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और आगे भेज सकते हैं थोड़ा सा, तो वो और कंट्रोल हो जाएगा, और आगे भेज देंगे तो और कंट्रोल हो जाएगा। सही है, राइट। ये सारा एनालिसिस किसके थ्रू हो रहा है भाई शैदान? ये पाइथन के थ्रू सर पाइथन कोडिंग। के थ्रू हो रहा है, कोडिंग के थ्रू। अब आप ही देखो कितना बढ़िया है, यहाँ ये भी एनालिसिस हो सकता 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 है, और यही सब तो सीखना है भाई, ठीक है। और ये जब मेरे को आ जाता है, और इन सब आने के बाद क्या घर पे बैठ जाए? इन सब को आने के बाद प्रेजेंट भी तो करना आना चाहिए, और प्रेजेंटेशन के यस। लिए थोड़ा सा हमें सॉफ्ट स्किल्स भी आना चाहिए, यस या नो? यस सर। और जब ये सारी चीज़ें हमें आ जाएंगी तब हमारा रेस्ट 40% कंप्लीट हो जाता है, और तब हम एक बढ़िया डेटा एनालिस्ट बन के निकलते हैं। अभी तो थे अच्छे, एक होता है ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अच्छे और ज़बरदस्त में। ये क्लियर है शैदान? ठीक है, यस सर क्लियर है। राइट। अगर मैं आपको एक वर्ड में समराइज़ करूं कि डेटा एनालिस्ट का क्या काम है, तो डेटा एनालिस्ट का, यहाँ पर हमने एक ग्राफ यूज़ किया था, आपको याद होगा, यहाँ विजुअल में डेटा एनालिस्ट के लिए हमने ये ग्राफ देखा था, विच इज़ ये है ना, कि डेटा एनालिस्ट ही आगे जाकर के डेटा साइंटिस्ट बनता है। डेटा एनालिस्ट ज़्यादातर काम करता है आपका एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पर। किस पे काम करता है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। क्या फुल फॉर्म होता है ईडीए का? एक्सप्लोरेटरी डेटा डेटा एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है। यस सर। इसमें यही हम इतने देर से सीख रहे हैं कि डेटा आता है और कंक्लूजन देना होता है, डेटा आता है और कंक्लूजन देना होता है। आपको कि सर ये क्यों सीखना रहता है? शैदान, आप कहाँ पर सबसे ज़्यादा घूमने गए हैं, बताइए? आउट ऑफ स्टेट कहीं घूमने गए हैं अभी तक? यस सर। कभी मौका आगरा, मिला? आगरा फतेहपुर गए? सीकरी। चलिए बहुत बढ़िया। शैदान, मेरे पास ना दो बंदे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, पर दोनों दोनों गए हैं नैनीताल, ठीक है। मुझे ये पता करना है कि नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमे। पर्सन ए 10 बार गया है, पर्सन बी 2 बार गया है, तो मुझे किससे सलाह लेनी चाहिए? पर्सन ए सर। क्यों, इसने ज़्यादा क्या किया हुआ है? ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। और हमें भी क्या करना है? एक्सप्लोर करना है सर, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। समझ आया ये एग्जाम्पल क्यों दिया था मैंने? हाँ हाँ, एग्जैक्टली सर। ठीक है। यही करना रहता है हमें डेटा एनालिस्ट के फील्ड में, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती है, देन फिर हम उसके बाद प्लान कर सकते हैं कि भाई अब हम डेटा साइंटिस्ट का प्लान कर सकते हैं, जिसमें फोरकास्टिंग करना रहता है। क्या करना रहता है आपको? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के लिए दो टेक्निक यूज़ होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, सेकंड इज कॉल्ड डीप लर्निंग। और वो आपका डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। देख रहे हैं ना,
2018 ये पास डेटा है और ये 2019 सारा क्या है, फोरकास्ट। ये फोरकास्ट करने के लिए बंदा वही मशीन लर्निंग सीखता है, मशीन को पहले सिखाता है, उसके बाद मशीन से आंसर गेट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। यही काम होता है आपका डेटा साइंटिस्ट का। शैदान समझ में आया? सर मैं डेटा साइंस के लिए अभी एलिजिबल नहीं होऊंगा, है ना? क्यों नहीं क्योंकि मैं एलिजिबल होगे? डेटा एनालिस्ट के बाद ही डेटा साइंस का, देखिए डेटा साइंस भी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है एमएल मशीन लर्निंग इंजीनियर तक का डेटा साइंटिस्ट, एक है डीप लर्निंग लेवल तक का डेटा साइंटिस्ट। और जब आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तक सीख जाते हैं, उसके बाद एक और फील्ड आता है जिसे हम कहते हैं जनरेटिव एआई। क्या कहते हैं? जनरेटिव एआई। नाम सुना है जनरेटिव एआई का? सर नाम ही सुना है इसका बस। नाम ही सुना है। अब लेकिन इसके बाद आपको इसके बारे में पता लगेगा। देखिए जनरेटिव एआई तक पहुंचने के लिए हमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आना चाहिए। जनरेटिव एआई का मतलब है यहाँ पर शैदान की वी आर जनरेटिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। जस्ट रिपीट दिस स्टेटमेंट, वी आर जनरेटिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ एआई। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर जनरेटिंग? इनपुट में टेक्स्ट दिया, बदले में टेक्स्ट आ गया, जनरेट कर रहे हैं। इनपुट में टेक्स्ट दिया, बदले में इमेज आ गया, चैट जीपीटी पे जनरेट कर रहे हैं। इनपुट में टेक्स्ट दिया, बदले में वीडियो आ गया, जनरेट कर रहे हैं। टेक्स्ट दिया, गिवली इमेज आ गया, बेबी पॉडकास्ट आ गया। ये सब क्या है? एआई का जनरेशन है। और इस जनरेटिव एआई तक पहुंचने के लिए मुझे क्या आना चाहिए? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग। और ये सारा फील्ड किसका पार्ट है भाई शदान? सर डेटा साइंस। डेटा साइंस नहीं, एआई का। डेटा साइंस तो फील्ड का नाम है, अच्छा, एआई का। एआई का। जनरेटिव। हाँ, उस इस एआई फील्ड में काम कैसे करें तो उसके लिए डेटा साइंस सीखना रहता है, ठीक है। और जो पर्सन है वो डेटा साइंटिस्ट होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, एआई इज जस्ट अ फील्ड ऑफ स्टडी, नथिंग एल्स। परफेक्ट, राइट। सो जेन हाँ। एआई तक पहुंचने के लिए डीप लर्निंग, उससे पहले मशीन लर्निंग, और जो पर्सन इन सब पे काम करे वो डेटा साइंटिस्ट, और डेटा साइंटिस्ट बनने से पहले आपका डेटा एनालिस्ट। तो ये कुछ इस एनालिस्ट। तरीके से चीज़ें आपकी इंटरकनेक्टेड है। एंड आई बिलीव, एंड आई फर्मली बिलीव कि यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है भाई शैदान, एनी डाउट? सर जैसे मैं ओके, हाँ। सर आई हैव अ डाउट। यस, बताइए, क्वेरीज। हाँ, सी दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ यू कैन आस्क योर एनी क्वेश्चंस और डाउट्स इफ यू हैव। शैतान बताइए। थैंक यू सर। हम्म सर मैं बिल्कुल नॉन आईटी फील्ड का हूँ, हम्म नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो डेटा साइंस के लिए मुझे एलिजिबिलिटी का कोई इशू आएगा ऐसा मुझे लगता है? पहले आप डीए से प्लान करें शैतान, ठीक है। जब आप डीए से कंफर्टेबल हो जाएं, जब आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएं, जॉब के लिए एलिजिबल आप इतने पे ही हो जाते हैं, देन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपको ये लगे कि पाइथन वाइथन अब मुझे आता है, सीख चुका हूँ मैं, तब आप एक्सटेंड करा लेना, क्या दिक्कत है भाई। जरूरी थोड़ी ना है कि आप कॉलेज गए और सीधा पीएचडी में एडमिशन करा लिया है। बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों भाई? यस सर। ठीक है, और बताओ शैतान, क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, क्लियर है सर, और बेटर क्लियर है मुझे अब। अच्छा, बिफोर दिस डेमो सेशन एंड आफ्टर दिस डेमो सेशन, आई थिंक कि यस सर, आई कैन पूरा क्लियरली। डोमेन, हाँ, पूरा डोमेन यस का आइडिया लगा होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। यस यस सर, आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस हाँ, आफ्टर दिस। चलिए ठीक है शैतान। सो जस्ट डू मी अ फेवर, दिस इज जस्ट अ फीडबैक, राइट, नथिंग एल्स। Okay, so it will just only ask you like my name and the rating that you wants to give, right? Out of 10, out of 5, whatever the rating that you wants to give, you can simply give, right? My name is Ankit Mishra। आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, गूगल का एक फॉर्म आएगा, उस पर आप पूछेगा, ठीक है, कि ट्रेनर एक्सप्लेन कर पाया नहीं, तो आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रेटिंग कर लेना। एंड आई बिलीव कि मेरे एंड पर तो क्लियर ही था सब कुछ, राइट? यस ठीक सर, है वो शैदान, वेयर इज हाँ, दिस क्यूआर? या दिस वन, यू आर जस्ट शोइंग। हाँ। यस। सो एक गूगल फॉर्म होगा, आप उसे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना, ठीक है, टाइम निकाल के। एंड देन इन केस इसके अलावा कोई डाउट रहता है आपका, सो आप काउंसलर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। काउंसलर का क्या नाम है आपके? सर मनीष, मनीष ठीक, सर। हाँ ठीक है, आप मनीष जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरीज आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर कुछ पूछना हो आपको तो, ठीक है। ओके सर। ठीक है और सैदान, हाँ, एनी डाउट, एनी मोर, जस्ट हाँ सेकंड सर, ये बताइए। मेरा क्यूआर स्कैन कर रहा था अभी, हम्म हो गया। यस सर। और सर आपका फुल नेम क्या है इसमें? अंकित मिश्रा।
Yes, sir. ANKIT अंकित मिश्रा, राइट? Yes, sir. करता हूँ. Okay. Thank you so much, sir. ठीक है शैदान, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। अब आप इतना समझ चुके हो कि आप समझा भी सकते हो, आई थिंक। Yes, sir. Very well. काफी काफी चीजें क्लियर हुई मुझे. चलिए ठीक है शैदान, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी जो आपका डिसीजन है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? Okay. Thank you so much, sir. ठीक है, ओके, बाय बाय।